S. Chan presents educational video lectures. Difficult concepts made easy. Study anywhere, anytime. Okay, as per the valuation rules, when you don't know or when you can't find out the value of a particular good through rule number 27, 28 and 29, we have declared that we'll find it through rule number 30 and 31. Now, rule number 30 is a cost-based method wherein a specific cost will be incurred by a manufacturer or a seller to acquire that good, to procure that good, and ultimately for furtherance of supply. And rule 31 talks about the residual method, right? So we'll look into all those rules, the further rules which are given in valuation rules in this video. To get in-depth knowledge of various subjects in commerce, we recommend these books from S. Chan Publishing and Vikas Publishing House. Link is provided in the description box. And welcome to S. Chan Academy. My name is Saurav. Let's start the video. So this one is rule 30, which is cost method. Now it is very simple. Logically बहुत easy भी है और समझने के लिए आसान भी है. राइट आपको क्लियर पता है कि रूल 27 अप्लाई करना है, पहले 28 अप्लाई करना है, फिर अगर नहीं निकल पाते 27 से रूल 29 अप्लाई करना है. इफ ऑल ऑफ दोस रूल्स फेल टू acquire to determine the value, we look forward to rule 30. Now rule 30 is a cost based method wherein we talk about the value of goods to be the 110% of the cost of production, cost of acquisition of such goods, or cost of production, or sometimes the manufacturing cost. So because sellers can be a manufacturer, right? Or sometimes a manufacturer can be the seller too, right? So herein it is very clear that whatever the product is, अब let's say मैं एक बात करता हूँ एक chair की, that chair is costing around 10,000 rupees to make a particular chair by a manufacturer. Value as per the rule 30 will be 110% of 10,000. Very clearly, right? Which becomes 10,000, it becomes 11,000 around, right? 110% of the product's manufacturing price, right? So this particular rule is very clear. I don't think there will be some doubt of any sort, right? Either you will decide the value through this way if you're not able to find out through 27, 28, 29. Let's say अगर आपको manufacturing cost भी नहीं पता है, right? और आपको procurement cost नहीं पता है. In that case, we'll go and look forward to rule number 31. Now, rule 31 is very much subjective, right? But which is also in lines with the GST rules, right? Now, GST valuation rules clearly declare कि हमारे पास 4-5 rules हैं. You find out कि किस तरह से आपको उस product का value निकालना है उन rules के through. अगर आप उनसे नहीं निकाल पाते हो, then GST rules clearly state as per rule 31 that you follow any method, but it should be in lines with GST rules. It should not go beyond the rules given by GST, and it should not be as per your convenience. It should not be evading taxes. It should not be the case that you're trying to evade taxes or make some fraud with the GST department. But as per the rules of GST, if you follow rule number 27 to 31, whatever way you can find out the value of a particular good, that particular value, if it is in line with GST rules, becomes the value of the product. It is as simple as that, right? यानी कि आपने जब तक rules नहीं तोड़े, GST rules नहीं तोड़े, तब तक आपने जिस तरह से भी value निकाला है और आपने inquiry के time पे उसको explain कर दिया है कि okay, this is how we have found out a particular value of a particular supply of goods or services. उस case में value consider कर लिया जाएगा until and unless it goes ultra vires the rules of GST, valuation rules of GST. So it is very clear. Moving to rule 32. Now this is something important, right? Which is talking about rules of valuation in case of money exchange. अब ये money exchange की बात कहाँ से आई? क्योंकि there are money exchangers available in India, right?
एंड हम सिर्फ इंडिया की बात करेंगे कि इंडियन टेरिटरी में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही है इन टर्म्स ऑफ इंडियन मनी, विल टॉक अबाउट दोस्त कि वो ट्रांजैक्शन जीएसटी के लिए एप्लीकेबल है, राइट? सो फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी एक्सचेंज, अब लेट्स से the person changing the currency has the option to determine the value of supply on the basis of either of the options. There are 2 or 3 options given to find out the value of a particular transactions for money exchanger, for any person who is authorized or licensed to do money exchange, कि वो particular transaction जो वो कर रहा है उसका value क्या होगा, right? So as per GST, option 1 talks about, which is very simple again, value of supply shall be where currency exchange from or to INR. Let's say मैंने डॉलर से कुछ रुपीज में एक्सचेंज करा या रुपीज से कुछ डॉलर में एक्सचेंज करा, उस केस में द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी कंप्यूटेड बाय फॉलोइंग मेथड. वैल्यू इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन बाइंग और सेलिंग रेट एंड आरबीआई रेफरेंस रेट. अब $1 इक्वल्स टू 80 rupees. This is the market rate, right? And RBI reference rate is $1 equals to 82 rupees, right? तो अब ये क्या बोल रहे हैं? The difference between buying और selling rate and RBI reference rate. So अभी अगर हम buy कर रहे हैं let's say 80 rupees में $1 market rate के हिसाब से, and यहाँ पे RBI reference rate is 82 rupees. So clearly $1 पे $2 का difference आ गया है, right? 2 rupees difference is there. So that becomes the value. But यहाँ पे ये ऐसा है होगा नहीं कि RBI रेफरेंस रेट 82 है और वो 80 में दे देगा, वो अपना लॉस नहीं करेगा. कोई भी सेलर, कोई भी मनी एक्सचेंजर, वो क्या करेगा, इसको 84 में देगा, राइट? 84 में देगा और वो फिर $2 का डिफरेंस उसका प्रॉफिट हो जाएगा, एंड जिस वजह से वो $2 पे टैक्स चार्ज होगा. $2 बिकम्स द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, और सॉरी वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन. सो लेट्स से अगर उसने $100 एक्सचेंज करे और $2 के हिसाब से उसने उस पर कमीशन कमाया, राइट, एज पर द आरबीआई रेफरेंस रेट, तो एकदम क्लियर है कि 100 into 2 दैट बिकम्स 200 rupees बिकम्स द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन, एंड उस 200 जो उसका कमीशन है उस पर टैक्स चार्ज होगा, राइट? वेयर आरबीआई रेफरेंस रेट इज नॉट अवेलेबल, वैल्यू शैल बी 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ INR रिसीव्ड और पेड. नाउ आपको ये तो क्लियर होगा कि मार्केट रेट क्या होगा, राइट? अगर आपको आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं पता किसी करेंसी का, लेट्स से डॉलर का आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं पता, आरबीआई ने क्या डिक्लेयर करके रखा हुआ है अभी, करंट मार्केट रेट, राइट? सो उस केस में आप क्या करेंगे, 82 रुपीज लेट्स से मार्केट प्राइस है पर डॉलर, मार्केट प्राइस, राइट? अब इस 82 रुपीज को आप कितना डॉलर्स ले रहे हैं आप? सो 82 लेट्स से आपने $100 लिए, 8200 बिकम्स ट्रांजैक्शन वैल्यू, एंड इस 8200 का 1% यानी कि 8200 का 1% यानी कि 82 रुपीज becomes the value of that transaction. So एक ही मेथड है वो, but there is a presence of RBI reference rate and another case there is absence of RBI reference rate. अगर presence of RBI reference rate है तो आपको क्लियर पता है कि कंपैरिजन कर देना, डिफरेंस बिटवीन द टू, राइट? कि मार्केट रेट के हिसाब से उसने कितने डॉलर एक्सचेंज करे और आरबीआई रेफरेंस रेट के हिसाब से उसके जो भी डॉलर एक्सचेंज है उसका वैल्यू क्या बन रहा है, उन दोनों का डिफरेंस विल बिकम दी वैल्यू ऑफ सप्लाई. और दूसरे केस में वी आर टॉकिंग अबाउट जहां पे आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं है, वहां पे 1% ऑफ द टोटल ट्रांजैक्शनल वैल्यू ऑफ द ग्रॉस अमाउंट और INR रिसीव्ड और पेड, राइट? सो उसको कन्वर्ट करना होगा हमें इंडियन करेंसी के टर्म्स में. नाउ सेकेंड मेथड इज वेयर नीदर करेंसी एक्सचेंज फ्रॉम, ओके, INR इज नॉट इंक्लूडेड और इन्वॉल्व्ड इन दैट सप्लाई. लेट्स से डॉलर के बदले इंडिया में कोई अमेरिकन आया, डॉलर के बदले उसने चाइनीज येन एक्सचेंज कर लिए, राइट? अब यहाँ पे तो इंडियन करेंसी है ही नहीं, तो फिर अभी कैसे वैल्यू निकाला जाएगा? सो उसका वैल्यूएशन रूल उन्होंने बताया है. सो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी इक्वल टू 1% ऑफ द लोअर ऑफ द टू. 1% ऑफ द लोअर ऑफ द टू. लोअर ऑफ द टू क्या है? जो भी करेंसी कन्वर्ट हो रही है, राइट, लेट्स से डॉलर और येन. डॉलर का इंडियन टर्म्स में क्या आरबीआई रेफरेंस रेट के हिसाब से वैल्यू है, और येन का आरबीआई रेफरेंस रेट के हिसाब से क्या वैल्यू है? ओके, लेट्स से $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज एंड 1 yen इक्वल्स टू 25 रुपीज.
अब इस केस में लेट्स से $100 एक्सचेंज हुए हैं और ये हुए हैं 400 येन, यानी कि उसने $100 देके 400 येन ले लिए, राइट। सो इसमें अब दोनों केसेस में हमें ये क्लियर पता है कि हमें इनका इंडियन रुपीज में वैल्यू निकालना है, राइट। सो ये हो गया 8,000 और ये हो गया 10,000, राइट। अब वो बोल रहे हैं कि 1% ऑफ लोअर ऑफ द टू, 1% ऑफ लोअर ऑफ द टू, तो यानी कि लोअर क्या है, ये इसका 1% ऑफ 8,000 कितना हो जाएगा, 80 रुपीज। दैट बिकम्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सच ट्रांजैक्शन। 80 रुपीज बिकम्स द वैल्यू हियर, राइट। सो कमीशन के हिसाब से हमने दो मेथड देख लिए हैं। एक मेथड जहां पे करेंसी एक्सचेंज फ्रॉम और टू INR, उस केस में दो सिचुएशंस हैं, एक कि अवेलेबिलिटी ऑफ RBI रेफरेंस रेट है, दूसरा केस में RBI रेफरेंस रेट का अवेलेबिलिटी नहीं है। सेकेंड मेथड इज जहां पे दोनों ही करेंसी जो एक्सचेंज हो रही है उन दोनों में से कोई भी इंडियन टर्म्स में, इंडियन रुपीज में नहीं है, राइट। कोई फॉरेन करेंसीज एक्सचेंज हो रही हैं आपस में, उस केस में मनी एक्सचेंजर के लिए क्या कमीशन होगा, क्या उसका वैल्यूएशन होगा एंड कितना टैक्स उस पर अप्लाई होगा, दैट्स हाउ वी फाइंड आउट, राइट। सो मूविंग टू द another option, right? Now let's say value of supply shall be determined on the basis of gross amount of currency exchange. अब ये बोल रहे हैं कि आपको अगर वो दोनों मेथड फॉलो नहीं करने हैं, राइट, देयर इज अनदर ऑप्शन गिवन टू यू। आप क्या कर सकते हो कि वेयर ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी इज अप टू रुपीज 1 लाख, राइट। अब 1 लाख तक हम सीधे सीधे वैल्यू लिख लेते हैं, 1 लाख तक का वैल्यू है, उस पर उन्होंने बोला है कि वैल्यू क्या होगी, 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट, यानी कि लेट्स से वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, लेट्स से वैल्यू है 80,000, राइट। अप टू 1 लाख उन्होंने बोला, तो 80,000 एक वैल्यू एक्सचेंज हो रही है फॉरेन करेंसी में। उस केस में हम क्या करेंगे, 80,000 में का या तो 1%, ठीक है, ये हो गया कितना, 800 रुपीज, आइदर दिस विल बी द वैल्यू, और मिनिमम जो वैल्यू, चाहे आप उसमें 10,000 रुपए एक्सचेंज कर रहे हो, 10,000 के हिसाब से 1% कितना हुआ, 100 रुपए, दैट कैन नॉट बी वैल्यू। मिनिमम उन्होंने क्या बोला है, 250 रुपीज विल बी द मिनिमम वैल्यू, राइट। सो अगर आप ग्रॉस अमाउंट के हिसाब से वैल्यूएशन फाइंड आउट कर रहे हो तो 250 विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी ट्रांजैक्शन बीइंग हैपनिंग। अगर चाहे वो $1 भी चेंज हो रहा हो, एक 100 रुपीज भी एक्सचेंज हो रहे हो, तब भी 250 रुपीज विल बी दी कमीशन कंसिडर्ड, विल बी द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन, राइट। सेकेंड केस में वो बोल रहे हैं, लेट्स से दूसरे केस में दे आर स्टेटिंग अगर कोई करेंसी अमाउंट, कोई वैल्यू अमाउंट 1 लाख अबव है एंड 10 लाख का बिलो है, तो क्या होगा। लेट्स से मैं एक वैल्यू कंसिडर कर रहा हूं 6 लाख, राइट, 6 लाख। अब 6 लाख में उन्होंने बोला है कि वैल्यू क्या होगा, तो एक तो इन्होंने एक फिक्स्ड फिगर बता दिया है कि 1000 विल बी फिक्स्ड। अब इसका भी लॉजिक है बेटा, 1000 क्यों फिक्स है, 1000 इसलिए फिक्स है कि अगर 1 लाख के ऊपर जाएगा कोई, राइट, तो 1 लाख तक का तो कमीशन बिल्कुल फिक्स हो गया, क्योंकि वो हमने बताया था 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट, राइट। सो 1 लाख का 1% कितना हो गया, 1000, इसलिए 1000 तो एकदम फिक्स है इस केस में। प्लस क्या करेंगे हम, 0.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 1 लाख। सो अब बचा हुआ 5 लाख जो इसमें है उस पर 0.5%, तो 5 लाख का बचा हुआ 0.5% हो गया 2500, राइट, 6 लाख की अमाउंट पे। सो वैल्यू हियर बिकम्स 3500, एकदम क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, राइट। यानी कि 1 लाख तक तो हमारा फिक्स है 1000, और बचे हुए 5 लाख पे हमने 0.5% लगाया है, बचे हुए 5 लाख पे हमने 0.5%, मेरे हिसाब से 2500 आना चाहिए, राइट। सो इतना अमाउंट हमने ऐड करके दैट बिकम्स द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ, ओके, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन।
थर्ड केस इज अबव 10 lakhs. सो अबव 10 lakhs में एकदम क्लैरिटी है, राइट कि उन्होंने बोला था कि अप टू 10 लाख में तो एकदम क्लियर था 1000 प्लस 0.5%. तो ये 5500 कहाँ से आया? ये 5500 अगेन उसी लॉजिक से आया कि 10 लाख तक पे मिनिमम कमीशन जो बनेगा वो 5500 बनेगा. आप चाहे कैसे भी कैलकुलेट कर लो. 1000 प्लस 0.5% ऑफ 9 lakhs लेके चल लो तो 5500 बनेगा वो. सो 5500 तो फिक्स है. अब 10 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट रहेगा, राइट, लेट्स से मैं एक फिगर अज्यूम कर रहा हूँ 12 lakhs रुपीज को मैंने एक्सचेंज किया, राइट. अब 12 lakhs पे एक तो अमाउंट फिक्स है, क्या? 5500. दिस इज तो फॉर श्योर क्योंकि वो 10 लाख तक की वैल्यू का फिक्स है. बचा हुआ 2 लाख पे कितना ले रहे हैं? 0.1% ऑफ द अमाउंट. 0.1% ऑफ 2 lakhs. 0.1% ऑफ 2 lakhs कितना हो गया? 2 लाख का 0.1%. लेट्स कैलकुलेट, राइट. ये हो गया अराउंड 1/10 of 2000. Okay, so 0.1% becomes 200 rupees, right? Or just see the calculation, 0.1% of the exceeding amount, that is 200 rupees. And यहाँ पे total amount बन गया आपका 5700. That becomes the value of supply of value of transaction in case of money exchange. This was option 2, which is talking about the gross amount of currency being exchanged. And वहाँ पे slabs दिए हुए हैं कि up to 1 lakh कितना होगा, up to 10 lakhs कितना होगा और above 10 lakhs कितना होगा, value of transaction, right? So here we'll take a break. We have gone through the value of supply in case of rule number 32, rule number 31, that is both a cost-based method and residual method. Then we have gone through rule number 32, wherein we are talking about value of transaction in case of money exchange, and therein there were 2 options we had a word about. That is on one option wherein Indian currency is involved, another option wherein Indian currency is not involved, and then there is a gross calculation method which we have discussed. We'll see you after the break. Now quality learning is easily available at your doorstep. S. Chand Academy brings detailed lectures based on UGC curriculum as per the New Education Policy 2020. So do not forget to subscribe to the S. Chand Academy and access the wide world of knowledge conveniently sitting within the comfort of your home. Stay connected and keep watching S. Chand Academy. Happy learning! Welcome back to S. Chand Academy. Before the break, we have gone through rule number 30, that was the cost-based method rule, and then rule 31, that was a residual method. And we have also looked into rule number 32 about currency exchange, wherein the transaction value is not known or the valuation is not known of such transaction. So we have gone through 3 methods of valuation. Further, we looked into another rule, that is rule number 32 in case, or a value of supply in case of certain supplies, specifically in case of air travel agent. That was the first one was, the case one was about the money exchange services. Second is travel agent services or air travel agent services. Now, where it is very easy, and we'll wind it up very quickly. So, value of supply or value of service provided by the air travel agent in case of booking of air tickets shall be calculated as follows, right? देखो हम आप सब tickets book कराते हैं, right? So, ये अभी तो हम ऑनलाइन खुद करने लग गए हैं, बट उस केस में भी जो प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं हम उसको वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि अगर लेट्स हम पेटीएम यूज़ कर रहे हैं या फिर फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं या फिर हम कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, वो एजेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो उनको उस केस में क्या प्रॉफिट्स हो रहे हैं उस पर, राइट, उस पर्टिकुलर सर्विस पे, और कितना वैल्यू कंसिडर किया जाएगा उस ट्रांजैक्शन पे कोई टिकट बुक करने पे. तो अर्लियर वो फिजिकल एजेंट्स के थ्रू हम कराते थे, तो दैट इज़ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. बट अभी हम क्योंकि और प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने लगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, तो उस केस में भी हम इन्हीं एजेंट्स को कंसिडर कर सकते हैं, राइट. सो डोमेस्टिक ट्रैवल के केस में इट इज़ वेरी क्लियर 5% ऑफ बेस फेयर, राइट, द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन. लेट्स से कोई टिकट जो हम बुक कर रहे हैं, सो लेट्स से हम दिल्ली टू चेन्नई जा रहे हैं और ये टिकट हमें 10,000 का पड़ रहा है, राइट. अब ये 10,000 इंक्लूड सेवरल अदर थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक बेस फेयर एलिमेंट होगा, राइट, बेस फेयर होगा. इसके अलावा इसमें एंटरटेनमेंट अमाउंट होगा, एंटरटेनमेंट सर्विसेज का अमाउंट होगा, इसमें मील्स का अमाउंट होगा.
So there will be n number of charges, right? So वो सर्विसेज को ना लेके हम सिर्फ इसका बेस फेयर देखेंगे. तो बेस फेयर लेट्स से अगर इसका 3,000 है या 4,000 रुपए बेस फेयर है, so that becomes the value of supply. नहीं, that does not become the value of supply. इसका 5% डोमेस्टिक ट्रैवल के केस में, right? इसका 5% becomes the value of supply. So almost 200 rupees becomes the value of supply here in this case, right? Moving to international travel. Let's say हमने एजेंट के थ्रू टिकट बुक किया एंड टिकट कॉस्टेड अस अराउंड 40,000 रुपीज़. अब उसका बेस फेयर लेट्स से उसमें जो एलिमेंट होगा बेस फेयर का उसमें होगा अराउंड 20,000, राइट? 20,000 का 10% विच इज़ डिक्लेयर्ड 10% ऑफ द बेस फेयर. सो वो वैल्यू बन जाएगा. यानी कि जो 40,000 जो टिकट का अमाउंट है उसमें बहुत सारे और एलिमेंट्स एडेड हैं, जैसे कि आपका इंटरटेनमेंट सर्विसेज, मील सर्विसेज या फिर ऑनबोर्डिंग सर्विसेज. ये सब कुछ ना लेके हम विल ओनली कंसिडर द बेस फेयर, दैट इज लेट्स से 20,000 फॉर अजम्पशन, राइट? एंड 10% उसका अमाउंट. सो इसका जो वैल्यू हो गया इट बिकम्स अराउंड 2,000. सो जो प्योर जो एजेंट है, ट्रैवल एजेंट, जो उससे कमा रहा है, दैट इज वो माना जा रहा है कि 2,000 रुपये कमा रहा है वैल्यूएशन पर्पज से, एंड उस पर टैक्स चार्ज होगा, उस पर GST चार्ज होगा, right? So that was the second case in certain supplies. Another case is life insurance business, right? So in case of life insurance business, value of supply in relation to life insurance business shall be the gross premium charged from a policy holder reduced by the allocated or invested or savings on behalf of the policy holder if such an amount is intimated to the policy holder at the time of service. देखो हम आप सब लेते हैं पॉलिसी प्रीमियम्स, राइट? पॉलिसी के सब्सक्रिप्शन लेते हैं. लेट्स से LIC का पॉलिसी सब्सक्रिप्शन आपने लिया और उसका प्रीमियम ईयरली 53,000 आ रहा है या 50,000 आ रहा है, राइट? उस प्रीमियम में से कितना पैसा आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है बाय द एजेंट कि कितना पैसा उसका इन्वेस्ट होगा और सेविंग के पर्पज से जाएगा कंपनी में, और कितना उसका अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट विल बी गिवन टू द एजेंट एज कमीशन, राइट? क्योंकि हम आप जो प्रीमियम देते हैं उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं. उसमें आपका इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अमाउंट भी होता है, उसमें सेविंग्स अमाउंट होता है, उसमें आपका एजेंट का कमीशन भी होता है, राइट? सो 50,000 तो वो हमारे लिए प्रीमियम है, बीइंग द कस्टमर्स, बीइंग द सब्सक्राइबर्स, बट उसका पूरा का पूरा अमाउंट डज नॉट अमाउंट टू वैल्यू ऑफ सच ट्रांजैक्शंस इन केस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी बिजनेस, राइट? सो उस केस में द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में जो अमाउंट है हमें डिसाइड करना है, हमें निकालना है कैसे कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, सेविंग्स अमाउंट कितना है, अगर वो कस्टमर को इन्फॉर्म किया गया है, राइट? अगर इन्फॉर्म नहीं किया गया तो फिर तो कोई वैल्यू नहीं बनता, राइट? बट स्टिल अगर इन्फॉर्म किया गया है कि लेट्स से आउट ऑफ 50,000 प्रीमियम आपका 35,000 विल बी इन्वेस्टेड इन सम शेयर्स, सम स्टॉक्स, एंड कुछ अमाउंट उसमें से सेव हो जाएगा. रिमेनिंग 50,000 अमाउंट जो बचा, that will go to the agent as commission. So this becomes the value of supply here, right? This becomes the value. 15,000 becomes the value of supply. Now, in case of single premium annuity policies, value shall be 10% of single premium charge from the policy holder, right? And in all other cases, it is 25% premium charge from the policy holder for first year and 12.5% from subsequent years. Which means what? कि एक केस है जहाँ पे आपने होलसम अमाउंट दे दिया पूरे पॉलिसी का, एंड एक सिंगल पॉलिसी आपने ली और उसका सिंगल प्रीमियम पे किया, उसका 10% अमाउंट, लेट्स से आपने 10 लाख रुपीज़ आपने पे कर दिया वन टाइम में, वन गो में, एंड आपने LIC ले लिया, LIC पॉलिसी ले लिया फॉर एग्जाम्पल. उस 10 लाख में से जो भी अमाउंट आप दे रहे हैं एज प्रीमियम, उसका 10% ऑफ द सिंगल प्रीमियम चार्ज विल बी द वैल्यू. अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं, नॉर्मली लोग करते हैं कि एक साल का एक बार में देते हैं, राइट? या फिर 6 मंथ्स और 6 मंथली देते हैं अमाउंट. सो अब मोस्टली कंपनीज जो करिकुलम फॉलो करती है वो करती है कि एक साल में एक बार आप प्रीमियम दो और 10 साल तक पॉलिसी चलेगा या 20 साल तक पॉलिसी चलेगा. सो हर उस साल के लिए फॉर द फर्स्ट ईयर इट इज 25%, फॉर द फर्स्ट ईयर इट इज 25%, and for further years it will be 12.5% of the premium charge from the customers. So first year it will be 25%, and for further years it will be 12.5% of the premium charge in the subsequent years,
that will become the value of supply, right? Moving to another case that is about second hand goods. Now value हम आप सब डील करते हैं सेकेंड हैंड गुड्स में, हम खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं, राइट? सिमिलरली लेट्स से फॉर एग्जांपल हम एक कार ले रहे हैं फ्रॉम अ सेकेंड हैंड मार्केट, यूज्ड कार का मार्केट है एंड वहाँ से हम कार ले रहे हैं, राइट? सो वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शैल बी द डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस and purchase price subject to ITC is not availed. If the value so arrived is negative, then it shall be ignored. Further, purchase value of goods repossessed from the defaulting borrower shall be the purchase value as reduced by 5% point per quarter or part thereof between the date of purchase and date of disposal. We'll explain this. Now, herein, let's say second hand goods की बात कर रहे हैं, यहाँ पे difference in selling price and purchase price, पहली चीज़ कि हमने कितने में ख़रीदा था. लेट्स से हमने आज प्रोडक्ट जो था वो 10 लाख का ख़रीदा, कार हमने 10 लाख की ख़रीदी थी एंड सेल हमने किया उसको 12 लाख में, लेट्स से फर्दरेंस ऑफ सप्लाई के पर्पस से, राइट? यानी कि अब ये तो डीलरशिप की बात कर ले या हम सेकेंड हैंड गुड्स की बात कर लें. लेट्स से हमने गाड़ी, जो सेकेंड हैंड डीलर्स होते हैं वो कितने में खरीदेंगे? लेट्स से 2 लाख की खरीदी उन्होंने, ठीक है? 2 लाख की एक गाड़ी खरीदी उन्होंने और उसमें कुछ रिफर्बिशिंग करी, कुछ एडिशन करा, कुछ वैल्यू एडिशन करा और उसको बेचा 3 लाख में. फर्दर उन्होंने किस में सप्लाई किया? 3 लाख रुपए में. सो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शैल बी द डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस दैट इज 3 lakhs एंड परचेज प्राइस दैट इज 2 lakh. डिफरेंस इज क्लियरली 1 lakh, राइट? उस 1 lakh, this 1 lakh will become the value of supply. Value of supply. बस यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, सब्जेक्ट टू ITC इज नॉट अवेल्ड. अब उसने जब 2 लाख का खरीदा था तो उस पर या तो उसने टैक्स तो नहीं पे किया, इनपुट टैक्स तो नहीं पे किया. अगर डीलर है तो ऑब्वियसली पे किया होगा, और डीलर नहीं है तो टैक्स नहीं पे किया होगा. तो डीलर है तो टैक्स उसने पे किया होगा, इनपुट टैक्स, एंड उसका उसने क्लेम भी लिया होगा ITC के तौर पे, राइट? उसने उसका क्लेम भी लिया होगा. लेट्स से 2 लाख पे 28% लेके चल लेते हैं, तो 2 लाख पे, और टू सिंप्लीफाई 20% लेके चल लेते हैं. रेट है नहीं वैसे 20%, बट सिंप्लीफाई करने के लिए रख रहे हैं. 20% उसका GST रेट है इनपुट टैक्स पे. सो 2 लाख का 20% हो गया ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़. 40,000 रुपीज़ उसने इनपुट टैक्स पे किया, जो कि वो गाड़ी को खुद चलाने के लिए नहीं लाया, वो फर्दरेंस ऑफ सप्लाई के पर्पज से लाया. तो उस 40,000 टैक्स को वो नहीं पे करेगा. वो अल्टीमेटली इनपुट टैक्स की तरह पे कर रहा है, बट उसको ITC की तरह वसूलेगा भी, राइट? गवर्नमेंट से बोलेगा कि मेरे को अब मेरा ITC वापस करो. सो 40,000 उसको रिवर्स हो जाएगा. एंड फर्दर जब वो गाड़ी 3 लाख की बेचेगा, उस पर वो 20% चार्ज करेगा फ्रॉम द कस्टमर. सो जो भी अमाउंट आएगा 20% का, अराउंड से 60,000, इट विल गो टू गवर्नमेंट डायरेक्टली, राइट? सो यहाँ पे ये केस तो एकदम क्लियर है कि ITC या तो ना लिया हो, अगर लिया है तो वो वैल्यू ITC का गवर्नमेंट के पास पहुंचना चाहिए. वो अमाउंट इनपुट टैक्स क्रेडिट का या तो सप्लायर के पास आना चाहिए, या फिर और उसके बाद अल्टीमेट जो टैक्स कंजम्पशन हुआ है वो कस्टमर से होगा, और कस्टमर अल्टीमेटली विल गिव इट टू द गवर्नमेंट. एंड कलेक्टिंग एजेंसी कौन है? द सेलर, राइट? नाउ फर्दर अनदर क्राइटेरिया इज गिवन. परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स रीपरचेज्ड फ्रॉम डिफॉल्टिंग बोरोवर shall be the purchase value as reduced by 5% point per quarter. Now, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, राइट? 3 महीना मतलब 1 क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर होते हैं. अब लेट्स से किसी ने 10 महीने तक गाड़ी रखी, उसका अमाउंट टैक्स पे नहीं किया एंड उसने 10 महीने तक गाड़ी चलाई. तो यहाँ पे चूंकि वो डिफॉल्ट कर रहा है, उसने गाड़ी का पेमेंट नहीं किया, 10 महीने तक गाड़ी चलाई भी है, तो उसका एक वैल्यू कंसिडर करा जाएगा कि 10 महीने तक का वैल्यू कितना होगा, राइट? सो फर्दर परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड फ्रॉम द डिफॉल्टिंग बोरोवर. सो गाड़ी उसने अगर 5 लाख की बेची थी, राइट? 5 लाख की बेची थी उस बोरोवर को, उस बायर को, और वो बोरोवर होगा क्योंकि उसने कुछ लोन कराया होगा या उसने क्रेडिट लिया होगा, राइट? एंड इसने क्या किया? इसने पेमेंट नहीं करा टाइम पे, 10 महीने तक उसने कोई भी अपना इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया. उस केस में क्या होगा कि जो वैल्यू है वो रिड्यूस कर दी जाएगी 5% पॉइंट पर क्वार्टर. सो 5% पर क्वार्टर के हिसाब से, यानी कि इनटू अगर हम 10 महीने ले रहे हैं तो इट विल बी काउंटेड एज 4 क्वार्टर्स,
क्योंकि आपका फ्रैक्शन भी विल बी काउंटेड एज 1 क्वार्टर, राइट? सो 9 months तो क्लियरली 3 क्वार्टर हो गए, 1 month विल बी इक्वल टू 1 क्वार्टर यहाँ पे, तो 4 quarters, अब 5% पॉइंट पर क्वार्टर से इसका वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा. सो 5 lakh into, okay, we'll calculate it. 5 4 is 20, 20 into 500, 1 lakh rupees. 1 lakh rupees उसका वैल्यू रिड्यूस कर दिया जाएगा, उसका अल्टीमेट वैल्यू बचा 4 लाख, राइट? सो दैट बिकम्स द वैल्यू ऑफ द vehicle, 4 lakh rupees. Okay, further looking into Rule 33, value of supply in case of pure agent. First of all, we'll go and look into the definition of pure agent, who is a pure agent, and then we'll talk about the criteria, how it is calculated, right? So a person who enters into a contract to act as a pure agent to incur in expenditure or cost in course of supply of goods or services or both, neither intends nor hold any title of goods or services or both, doesn't use his own interest on goods or services procured, and receives only the actual amount incurred, 100% reimbursement. So I'll talk about an example, which is, let's assume some business owner, right? And actually it is a related example to me only. Someone in my family does a business, and there is a person who is a trustworthy person who is also acting as a pure agent all the time in his business, right? So वो क्या करते हैं, अगर let's say he needs to procure land for furtherance of business, so वो जो प्योर एजेंट है वो अपने हिसाब से वो बिजनेस रन करने के लिए वो अपने हिसाब से वो ज़मीन खरीद लेते हैं, राइट? ही प्रोक्योर्स दैट लैंड, ही पेज दैट अमाउंट विदाउट द ओनर बीइंग नोन अबाउट सच ट्रांजैक्शन, राइट? सो उनको इन्फॉर्म भी नहीं करना और उनको सीधे सीधे ज़मीन खरीद लिया, कोई भी प्रोक्योरमेंट हो रहा है उसका पेमेंट कर दिया टाइम पे, राइट? सो उस केस में क्या होता है, क्योंकि उनको इतना ट्रस्ट है कि मेरा ओनर मेरा अमाउंट जो मैं स्पेंड कर रहा हूँ वो मेरे को 100% रीइंबर्स कर देगा, एंड उस प्योर एजेंट का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, मतलब उसको कोई प्रॉफिट नहीं कमाना, उसमें कोई कमीशन नहीं कमाना, वो सिंपली आउट ऑफ अ रिलेशनशिप, आउट ऑफ अ प्योर एजेंट रिलेशनशिप वो ऐसा कर रहे हैं, और वो टाइम पे उसका पेमेंट कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, और सर्विसेज को इन्हांस करने के लिए, गुड्स को इन्हांस करने के लिए वो सप्लाईज खरीद रहे हैं, राइट? सो दैट सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज अ प्योर एजेंट ट्रांजैक्शन, एंड उस केस में उसको 100% रीइंबर्समेंट मिलना भी चाहिए, राइट? क्योंकि वो बंदा अपने बिना इंटरेस्ट के, बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के, वो आपको हेल्प कर रहा है आपके बिजनेस रन करने के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए. सो दैट इज अ प्योर एजेंट सर्विस. नाउ वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्योर एजेंट शैल एक्सक्लूड द एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इनकर्ड बाय हिम, राइट? अब जो भी उसने अमाउंट इनकर किया होगा किसी भी प्रोक्योरमेंट में प्योर एजेंट ने, उस प्रोक्योरमेंट अमाउंट को आप पूरी तरह से एक्सक्लूड कर देते हैं, राइट? ही एक्ट्स एज अ प्योर एजेंट एंड मेक्स पेमेंट ऑन ऑथराइजेशन. आपसे वो पूछ लेगा, ठीक है, कि मैं ये ज़मीन खरीदने जा रहा हूँ और मैं इसका पेमेंट भी कर रहा हूँ, और आप पूछते हो कितना रेट है, क्या अमाउंट बनता है, एंड दैट इज हाउ यू ऑथराइज दैट पर्सन, राइट? सिमिलरली पेमेंट मेड बाय प्योर एजेंट एंड द सेम हैज बीन शोन सेपरेटली ऑन हिज इनवॉइस. अब वो जो इनवॉइस बनेगा उस प्रोक्योरमेंट का, उस पर क्लियरली मेंशन होगा कि पेमेंट हैज बीन मेड बाय प्योर एजेंट और द नेम ऑफ दैट प्योर एजेंट, राइट? एंड द सेम हैज बीन शोन सेपरेटली ऑन हिज इनवॉइस. And similarly, supplies procured by the pure agent from the third party are in addition to the supplies on his own account. So, जो भी supplies third party दे रही है pure agent को, वो separate है, right? ना कि similar supplies है, और उसमें addition में नहीं है वो supplies, जो वो personal supplies ले रहा है उसके addition में नहीं है. Business के लिए उसने वो supply ली है, procurement के लिए वो supply ली है, and for that reason वो सर्विस उसको रिम्बर्स करनी पड़ेगी ओनर को. वो 100% रिम्बर्समेंट होगा उस प्रोडक्ट का, उस प्राइस का जो उसने पे किया है फॉर प्रोक्योरमेंट पर्पसेस, राइट? मूविंग टू एन एग्जांपल. नाउ कॉर्पोरेट सर्विसेज. फर्म ए इज एंगेज्ड टू हैंडल द लीगल वर्क पर्टेनिंग टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी बी. एक फर्म है ए, वो एंगेज्ड है लीगल वर्क पर्टेनिंग सर्विसेज के को लेके, दे वांट टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी बी, right? Other than its service fees, A also recovers from B registration fee and approval fee for the name of the company paid to the registrar of the companies. अब भाई जब पेपर लेके गया रजिस्ट्रार के पास, ए गया, उसने देखा कि मालिक तो अवेलेबल नहीं जिसको कंपनी रजिस्टर कराना है, तो कोई नहीं, अभी तो कागज़ लेके दोबारा वापस नहीं जाएगा, तो उसने कहा ठीक है पे कर देते हैं. तो उसने रजिस्ट्रार ऑफिस में
पे कर दिया कुछ फीस जो कि अप्रूवल फीस थी या रजिस्ट्रेशन फीस थी. द फीस चार्ज बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल ऑफ द नेम आर कंपल्सरीली लेवीड ऑन बी. राइट, ये जो अमाउंट ए ने पे किया है ऑन बिहाफ ऑफ बी, तो बी को वापस रिम्बर्स करना पड़ेगा ए को, एंड यहाँ पे ए के नाम से एक इनवॉइस बनेगा. So A merely acting as a pure agent in the payment of those fees. Therefore, A's recovery of such expenses is a disbursement and not a part of value of supply made by A to B. So जो भी pure agent का reimbursement है वो value का part नहीं है. A को जो other than reimbursement जो भी commissions मिलेंगे B से sales करने पे या कुछ और चीज़ों पे, वो उसका value माना जाएगा, उस वैल्यू पे टैक्स भी चार्ज होगा. बट इस केस में नहीं, रीइंबर्समेंट के केस में नहीं. सो दैट इज अ नोटिफाइड थिंग, राइट, बाय द गवर्नमेंट. टॉकिंग अबाउट रूल 34, व्हाट इज द एप्लीकेबल रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई. सो एकदम नोटिफाइड थिंग है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है दैट टैक्सेबल गुड्स के केस में रेट नोटिफाइड बाय द बोर्ड अंडर सेक्शन 14 ऑफ कस्टम्स एक्ट CBEC. सो कस्टम्स अभी पूरी तरह से सबस्यूम नहीं हुआ है जीएसटी में, राइट. सो CBEC रेट अप्लाई करेगा, राइट. इन केस ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज रेट एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. तो यहाँ पे गैप सुना होगा आपने, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसका रेट अप्लीकेबल होगा, राइट. सो एक इंफॉर्मेशन है आज अंडर द रूल 34. देन वी हैव रूल 35, वैल्यू ऑफ सप्लाई विच इज इंक्लूसिव मेथड. अब कई बार ऐसा होगा कि आपको वैल्यू नहीं पता होती और आपको जो अमाउंट देना होता है, वैल्यू देना होता है, दैट इज इन टोटल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, राइट. आप कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदते हो जहाँ पे MRP गिवन होती है, उस MRP को आप पे कर देते हो, बट इट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स. सो उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वो एक यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है यहाँ पे, सिंपल सा, वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्स इनटू टैक्स रेट इन परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस सम ऑफ टैक्स रेट. अब मैं इसको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ यूनिटरी मेथड के हिसाब से. लेट्स से एक पार्ले-जी का पैकेट है, वो 5 रुपए का आता है, राइट. उसमें लेट्स से 5% GST एप्लीकेबल है, राइट. सो वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्स इनटू 5% डिवाइड बाय 100 प्लस सम ऑफ टैक्स रेट, डिवाइड बाय 100 प्लस सम ऑफ टैक्स रेट. सो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 25 बाय 105, राइट. So let's say यहाँ पे 100, so 520, 5 by 20 and divide by 105, 100 plus 105, 5, 25 by 105. 25 by 105 becomes the टैक्स अमाउंट. सो आपको टैक्स अमाउंट क्लियरली पता चल जाता है जब, तो आपको वैल्यू भी पता चल जाता है. तो पार्ले-जी में से वो अमाउंट आपने निकाल दिया और वह, सो यस, टैक्स अमाउंट इज कैलकुलेटेड थ्रू दिस फॉर्मूला, राइट. एंड व्हेन यू फाइंड आउट द टैक्स अमाउंट, यू फाइंड आउट द वैल्यू एज वेल, बिकॉज MRP इज inclusive of both tax amount plus the value of the product. Okay, so that is it. We have gone through Rule 30, Rule 31, Rule 32, 33, 34 and 35. 34, 33 and 35, they were more of informative rules. Basically, there was some sort of notification given by the GST rules wherein they were being more specific about what not to be included in a particular value, right? In case of pure agent, let's say, for example, they have explained that you need not include what reimbursement amount is, right, under the value, right? Because they are procuring some goods on business behalf. So for that reason, वो value आपको consider नहीं करनी. Similarly, Rule 33 also was a kind of informative rule. Rule 32 is a more of elaborative rule wherein there are 3 or 4 services are explained, wherein pure agent service is explained, wherein your air ticket agent service is explained, LIC service is explained, money exchange services is explained, right? And in Rule 30 and 31, 30 is cost-based rule wherein 110% of the manufacturing cost or procurement cost, whatever it is the value of supply. In Rule 31, they're talking about that it is upon the exercise or option of the FSC whether he wants to find out
value in alignment with the rules given under the GST rules, right? And it should not go beyond it should not be a convenience for the assessee to find out a particular value according to their concern, right? So that is it. We'll see you in another video. Thank you for staying connected. To get in-depth knowledge of various subjects in commerce, we recommend these books from S. Chand Publishing and Vikas Publishing House. Link is provided in the description box. If you found our video interesting, please like, share and subscribe. And do not forget to press the bell icon. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.